जय गुरुदेव। तो गुरु के सानिध्य का महत्व गुरुदेव ने खुद ही बताया। When we are in presence of the master, so that presence could mean physical presence, or it could also mean when you are doing the sadhana, जब आप सत्संग में बैठे हो, गुरुदेव का ज्ञान हम सुन रहे हैं, अभी भी जो हम गुरुदेव का प्रेजेंस ही फील कर रहे हैं यहाँ पे, तब क्या होता है? The presence of the master has that power, उनमें वो शक्ति है कि वो हमको हमारे लिमिटेड फिजिकल एग्जिस्टेंस से जो हमारा इटर्नल अस्तित्व है, वो जो बीज है हमारे में, जो अनचेंजिंग है, उसके कनेक्शन में आ जाते हैं। We get connected to that infinity within us, और इसीलिए फिर इतना अच्छा लगता है। देखो, गुरुदेव को मिलते हैं तो एक्सपैंडेड लगता है ना, सारा दुख वगैरह सब टेंशन भूल जाता है व्यक्ति। वाई? वो बैकग्राउंड में तो वही लाइफ है, लेकिन जब आप आश्रम आए हो, जब गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, when he is there, that time how do you feel? You feel so expanded, you feel so happy, you're dancing in the satsang because you're in touch with that universal supreme consciousness, the infinite, which is there in everything, which is Krishna. So Gurudev has given us a very beautiful homework today actually, by giving that example. जब गुरु ने कोई पक्षी की आवाज जो होती है, when a bird is chirping, it is not that physical bird which is chirping, it is the universal Brahman which is giving it the sound through that body of the bird. तो देखो, this knowledge ना, we will feel it is very abstract. अरे क्या, how can I love somebody's spirit? मतलब क्या मैं भूत से प्रेम करूं? गुरुदेव asked, do you love the body or do you love the spirit? हमारे मन में आ सकता है, स्पिरिट को कैसे प्रेम करेंगे, भूत को प्रेम करेंगे? ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा. You'll have to practice this. So when we listen to the chirping of a bird, we have to be with that and we have to ask ourselves, ये पक्षी की आवाज है या ये कुछ और है? जैसे गुरुदेव ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, खिड़की में से सूर्य प्रकाश आ रहा है. So do we say the window is shining? We don't say the window is shining. The sun is shining through the window. So God is singing through the bird. When somebody is loving you, God is loving you through that person. So again and again, if we get this line of thought, see, when you love someone, do you love that person or are you loving that life force? Are you loving the divinity? Are you loving that consciousness in that someone? So today, if you're going to say, you can do this as a homework. Instead of saying, I love you to someone who you love, you can say, I love the divinity in you. थोड़ा सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा, अरे क्या हो गया इसको, आज साधना जरा ज्यादा हो गई लगता है. But that is the reality. तो बार बार जब ये इसका अभ्यास करेंगे ना, when a thought comes to you, oh, the scenery is so beautiful, you are seeing the divinity in the scenery. Like Krishna says, na,
I am the beauty in the beautiful. I am the intelligence in the intelligent. I am the fragrance in the fragrant. Then this knowledge will start making more and more sense. नहीं तो फिर ये लगेगा अच्छा ये भगवत गीता में तो लिखा है सब, ठीक है वो सब तो ऊपर से जाता है. No, to make it easy, to make it practical, to be able to integrate it, we will have to remember it again and again. Tables कैसे by heart हो गए हमको, 2 2s are 4, 2 2 3s are 6, 2 4s are 8. ये बार बार किया तो आया. हैंडराइटिंग कैसे बना हमारा? हाउ डिड वी लर्न टू राइट द अल्फाबेट? कितनी बार लिखा ए ए ए ए ए अगेन एंड अगेन, तभी वो बैठ गया. द लैंग्वेज, द वर्ड्स वी स्पीक, कितनी बार वही शब्द बोले हैं, तब वो दिमाग में बैठ चुका है. Your name, so many people have called out your name so many times. That is why the moment you hear that sound, there is an equation. Acha, Salil means, okay, this person is Salil. Because I have heard it so many times. तभी वो दिमाग में बैठ गया. तो वैसे ही, when I love something, what I'm actually loving, I'm not loving that something. I'm loving the divinity which is shining through that. And the second homework, Gurudev ne fir, in the last few minutes, he emphasized on being a witness. Being a witness to everything that is changing. लेकिन वो witness हम तभी बन सकेंगे अगर हम उस अनचेंजिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम चेंजिंग के विटनेस बन सकते हैं. जो बदलता नहीं, उसके साथ जब एक हो जाते हैं, तो जो सब कुछ बदल रहा है उसके साक्षी बन सकते हैं. The unchanging can see the change. See, when one hand is fixed like this, then I can see the other hand moving like this. But if my both hands are moving, then for me, they are steady to each other. Isn't it? आपकी गाड़ी जा रही है हाईवे पर, दूसरी गाड़ी भी सेम स्पीड से जा रही है, तो आपको क्या लगता है? आपकी गाड़ी और वो गाड़ी एक साथ है. लेकिन जब आपकी गाड़ी रुक जाती है, आप रुक जाते हो पानी पीने के लिए, तब जब दूसरी गाड़ियां जाती रहती है, तभी आपको उनका स्पीड पता चलता है. क्या फास्ट जा रही है गाड़ी. आपकी गाड़ी भी वैसी ही जा रही थी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, because you had become part of the changing. When you become steady, when you become the unchanging, then you can see the change. तो साक्षी बनने के लिए ये सब कुछ बदल रहा है. शरीर बदल रहा है, पूरा वर्ल्ड बदल रहा है. द होल क्रिएशन इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. ये साक्षी जब बनेंगे तो वो स्ट्रेंथ आता है अंदर से. फिर कितनी भी घटनाएं घटते जाती है, आपको उसका असर नहीं पड़ता. समथिंग हैपेंड, कुछ लॉस हुआ, कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ हुआ, कुछ फाइनेंसेस में गड़बड़ हुआ, यू आर द विटनेस, यू आर द अनशेकेबल. गुरुदेव सेड ना, you feel invincible. You feel invincible. मेरा कुछ नहीं, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी. ये strength, when you are that witness, when you are in the abode of the divine, जब भी तुम ईश्वर के घर में हो. Gurudev said, when will that happen? When you surrender to the divine, what actually happens is, see, it's like एक बूंद जब अकेला होता है तो वो 2 मिनट में सूख जाएगा. लेकिन बूंद जब सागर में अपने आप को समर्पित कर देता है,
तो क्या हो गया, बूंद सागर बन गया. Now it feels so powerful, so infinite, so big, invincible, because अब वो बूंद बूंद नहीं रहा, अब वो समुंदर बन चुका है. So when you surrender, when that surrender happens, what is actually happening is you are becoming that infinite, you are becoming that universal consciousness. तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा. तो आज ये होमवर्क है, recognize the divinity in whatever you are seeing around you, and second, be a witness. Just recognize, see, everything is changing. अभी सनराइज हो चुका है, थोड़ी देर में और धूप तेज हो जाएगी, फिर सूरज ढलने लगेगा, फिर रात आएगी. Continuously the cycle is going on. कुछ देर में आपको भूख लगेगी, फिर आप कुछ खाओगे, फिर आपका पेट भरा हुआ होगा, फिर आपको भूख लगेगी. Will keep changing. लेकिन there is something inside you which is the same, which is recognizing the hunger. That's something in you. So we have to, for someone else it may sound very stupid. ये क्या होमवर्क कर रहे हो? तो टुडे if you want to tell somebody, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या बोलो? ऐसे मत बोलो मुझे बहुत भूख लगी है. ये जो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो वही हूं. ये जो मेरा शरीर है, वो शरीर में एक पेट है, उस पेट को भूख लगी है. लोग आपको पागल बोलेंगे, लेकिन देखो थोड़ा सा क्रेजी बनना पड़ेगा, बिकॉज ये ज्ञान जब स्ट्रांग होने लगता है, सी जब गुरुदेव को देखते हैं हम तो हमको लगता है ना, अरे कितने पावरफुल हैं गुरुदेव, इनको कुछ कोई हिला सकता है क्या? गुरुदेव को कोई कुछ कर सकता है क्या? क्यों? बिकॉज वो हर पल वो साक्षी में ही है, वो उस दिव्य चेतना में ही है. तो अगर हमको ऐसी शक्ति चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. आर यू रेडी? आर यू रेडी टू डू दिस स्टूपिड होमवर्क? दिव्या, यू आर सेइंग यस और नो? नो? अरे ठीक है, बाथरूम में करो, अकेले करो. जब नहाओगे तो ये मत बोलो मैं नहाने जा रहा हूं. जो मैं तो नहाता भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो वही हूं. मुझे नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं न मैला होता हूं न स्वच्छ होता हूं. ये जो मेरा एक अस्तित्व का एक स्तर है, शरीर, इस शरीर पे थोड़ा सा मैल आ जाता है, फिर इस शरीर को धोना पड़ता है. तो शरीर को नहलाने जा रहे हैं, हम नहीं नहा रहे हैं. See, today when you get upset, suppose some argument happens with your husband, wife, something in the house, or with your boss. When you get upset, क्या बोलते हो? अरे मेरा मूड खराब हो गया. मेरा मूड नहीं खराब हुआ, मेरा मूड खराब नहीं हुआ, और तुमने मेरा मूड खराब नहीं किया. तुम तो दिव्य हो भाई. अपने बॉस को बोलो, मत बोलो, निकाल देंगे आपको. मन में ये बोलो, हे मेरे बॉस, तुम तो भगवान हो, तुम तो ईश्वर हो, तुम तो कोई बेवकूफी कभी करते ही नहीं, तुम तो कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, तुम तो हमेशा, तुम तो ऐसा कभी तुमने किया ही नहीं कि मैंने अच्छा काम किया और तुमने क्रेडिट ले लिया. ये जो तुम्हारा जो एक लिमिटेड अस्तित्व है ना, ये छोटा माइंड है ना, ये खेल खेलता है. और ये जो मेरा जो छोटा माइंड है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मैं भी भगवान ही हूं. आप देखो, ये आज करो ऑफिस में, आपको कोई अपसेट ही नहीं कर सकेगा. कोई आपको अपसेट कर रहा होगा और आपको अंदर से मजा आ रहा होगा. ये भगवान को अपसेट करने की कोशिश कर रहा है, पागल. You actually do this, I tell you, you will feel so powerful. Okay, so that's your homework.
recognizing the divinity everywhere and recognizing that I am the witness. साक्षी है, सब कुछ बदल रहा है लेकिन मैं बदल नहीं रहा. ओके, जय गुरु.